So, Namaste and welcome to Code Science Testing, your ultimate guide to mastering the software testing and development. Today, we are diving into an essential topic, the software development life cycle (SDLC). Whether you are a fresher stepping into an IT world or a professional aiming to sharpen your skill, this is video for you. Let's brew some quality code together and कोड चार्ट टेस्टिंग में आज जैसा कि मैं दोबारा इंट्रोड्यूस करूँगा कि एस हम पढ़ने जा रहे हैं। एस एक बहुत बेसिक अप्रोच है। तो टेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर आपको पता होना चाहिए कि एस क्या होता है लाइफ में। जैसे आपको मैं एग्जांपल आई ट्राई टू कवर वन एग्जांपल दैट इज़ like if you want to finish suppose that a syllabus, so you can't do that in a one day, right? So you have a one systematic planning, right? So like suppose that there is a 10 chapter and you have a month to complete it, so you divided that suppose that 3 day for each chapter. So at the end of the month you can complete that if you proceed that procedure over there for 3 day to complete a one chapter, right? Suppose that you are randomly picking any chapter and you try to complete. Someday you spend 1 day, someday 1 hour, someday 2 days. So you are not going to complete the syllabus, and that happening most of the time with the teacher. So same thing happening with the software industry as well, IT industry. So that's why the term SDLC come into the picture, and SDLC basically software development life cycle. And जैसा कि मैंने कहा, it's a structure approach which is used to design, develop, test and deploy software, right? So it's a systematic process that ensure high quality software is delivered efficiently and effectively, right? So हम चाहते हैं कि एक सिस्टम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। जब हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छा एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि उसकी लगातार टेस्टिंग हो रही होगी और लगातार उसमें कोड चेंजेस होंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। सो एक हम पे प्लान होता है। कोई भी आर्मी भी अगर कहीं जाती है तो वो एक प्लान करती है, सो डैट उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं टू अचीव सम गोल इन विद इन एक टाइम फ्रेम। So that's the same stand for the software development life cycle. And if you take a screenshot of this, so you can get the SDLC life cycle. Basically means a structure or a planned approach to develop a software. That's the SDLC, right? So SDLC in a very easy language, there is a very, I go want to give credit to Geek for Kicks over here. And here I would say there's a very simple diagram which is define SDLC. कोई भी चीज like if you want to make, then you first do some kind of a planning, right? So that's the first phase of the SDLC. When you defining that plan, like suppose that you want to appear for the exam, right? So उस एग्जाम में appear होने के लिए आप क्या करोगे? But so what you will do, you will get the 2-3 books, like some from the CBSE that is provided by the board. You will take other writer books as well. You defining your approach, like from where you get some practice paper over there, right? So that's a defining. Then you will design. सो सॉफ्टवेयर आप फिर डिज़ाइन करते हो क्योंकि आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ गई ना। सपोज दैट आपको फेसबुक बनाना है, राइट? तो आप प्लानिंग करोगे, उसमें ये चीज़ होगी, आप डिफाइनिंग करोगे कि नहीं ये चीज़ नहीं कर सकते, हम अभी के लिए करेंगे। फिर डिज़ाइनिंग, फिर आप बिल्डिंग, एक प्रोसेस आती है, फिर हम टेस्टिंग करते हैं और फिर उस चीज़ का डिप्लॉयमेंट करते हैं। सो एक ये प्रोसेस है। तो आप इस 6 स्टेप को याद रखिएगा, कोई इंटरव्यू में पूछिए बहुत, आप इसका जिक्र कीजिए एच के 6 स्टेप्स का, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज आई टोल्ड यू, द प्लानिंग, डिफाइनिंग द स्कोप, इसमें क्या क्या डिफाइन करते हैं आप? स्कोप, गोल डिफाइन करेंगे एंड पर्पस, ठीक है? अब फिजिबिलिटी से आपको घर बनाना है। अब घर बनाने की फिजिबिलिटी देख रहे हैं, घर बन पाएगा नहीं पाएगा, मिट्टी उतना वजन झेल पाएगी नहीं झेल पाएगी, तो एक फिजिबिलिटी। तो ऐसे हम सॉफ्टवेयर की फिजिबिलिटी देखते हैं कि ये पॉसिबल भी है, कोई चीज़ ऐसी ना हो ना आउट ऑफ द बॉक्स हम कर ही ना पाए। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे कमाने बैठा है, राइट? सैलरी कंपनी। सो हम उसका कॉस्ट रेट, सपोज क्लाइंट कहता है 2.5 लाख में बना दो, मैं हाथों कर दूँ, पता लग रहा है उसकी कॉस्टिंग है 4 लाख रुपये, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर डील। सो वी नीड टू कैलकुलेट द एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट, रिसोर्सेज वी नीड टू फाइंड, शेड्यूल द टाइमलाइंस, बिकॉज एक टाइमलाइन में मुझे सारी चीज़ें कंडक्ट करनी है। सो दैट्स अ प्लानिंग। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, लाइक आप रिक्वायर करते हो कि भाई आपका कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट, एग्जैक्टली कस्टमर चाहता क्या है। आप सर्वे करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एंड डेट इज SRS, जो आपको मोस्टली टाइम मिलेगा। जैसे आप बग भी बनाते हो, आप बग कैसे बनाओ, कैसे इसको किसी चीज़ से कंपेयर तो करोगे ना।
कि मान लो आपके लॉगिन बटन लेफ्ट में नहीं राइट में नहीं, पर आपको कैसे पता होगा? तो आप वो कहाँ से देखोगे? एसआरएस से। उसके बिहाफ में आप बोलोगे कि नहीं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये नहीं ये है, तो ये एक बग है, आपको ठीक करना पड़ेगा जो आप डेवलपर को साइन करोगे। फिर सिस्टम डिज़ाइन होता है कि आर्किटेक्चर होता है सिस्टम का, जहाँ पे क्या करते हैं, एक सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सब चीज़ एक टेक्निकल बंदा उसको बनाता है, आर्किटेक्चर होता है, सिस्टम आर्किटेक्चर वो बनाता है। उसमें डेटाबेस कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, कैसा यूआई यूएक्स होगा उसका, राइट, क्या सिक्योरिटी लेयर होगी, क्या ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, ये हम आगे चल के आगे की वीडियो में समझेंगे। उसके बाद जो डेवलपर आता है बहुत ईजी चीज़, कोड सोर्स कोड लिखता है उसको बनाता है। फिर एज अ टेस्टर आप उसको टेस्ट करते हो, टेस्ट प्लान बनाते हो, टेस्ट केसेस, टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं। देन डिप्लॉयमेंट करते हैं, हम कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं, फिर उसके बाद उसका मेंटेन। सो ये एक ईजी भाषा में एच होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या होती है एच की? कि ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है, एक अप्रोच होता है, एक टाइम में आप चीज़ें कर पाते हो, एक कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है, राइट, और एक कस्टमर को एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर आप डिलीवर करते हो, राइट। अगर आप रैंडमली कुछ भी करोगे तो ऐसा नहीं होता ना। और दूसरा रिड्यूस कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो रही? सपोज दैट मैं रैंडम एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, रैंडम टेस्टिंग कर रहा हूँ, उसकी कोई टाइम लाइन ही नहीं है, खींचे जा रहा है, तो उसमें कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। तो इसके लिए एक चीज़ आई रिड्यूस कॉस्ट करने के लिए। अलग अलग सेरेमनीज आती हैं, अलग अलग मेथडोलॉजी है, सो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम एच में हैंडल करते हैं, ठीक है। सो इन चीज़ों को एच आता हो गया, पर इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होती है, आई वुड से मॉडल होते हैं। जो सबसे पहला मॉडल आया डेट इज़ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मतलब कैसे? ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है पानी, कभी एक बार ऊपर से नीचे गिर गया पर नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए इसका नाम क्या लगा? वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल इज सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट एच मॉडल, राइट। ये बहुत पुराना मॉडल है एंड इट इज़ लीनियर सिक्वेंशियल। सिक्वेंस मतलब एक के बाद एक। यू मस्ट बी कम्प्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट वन बिगन। आपको एक स्टेप पूरा करना होगा दूसरे स्टेप जाने के लिए, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, राइट। मैं एक बहुत सिंपल सा डायग्राम दोबारा गिग फॉर गिग से मैंने जो लिया है, एक बहुत, जैसे आप पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था एच में, फिर आप डिज़ाइन करेंगे, फिर डेवलपमेंट करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट, देन मेंटेनेंस। आप देख रहे हैं, अगर बिना रिक्वायरमेंट के आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, बिना डिज़ाइन करे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और जब कुछ डेवलपमेंट का टेस्ट तो बेसिकली नहीं होगा। एक के बाद एक है, पर ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बीच में से रैंडम स्टाफ हटा दोगे, नहीं। ये एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है, सिक्वेंशियल अप्रोच है, आप ध्यान से देखें तो, राइट। सो दैट इज़ वाटरफॉल मॉडल। अब इसके इनिशियली कुछ फ़ायदे थे पर इसके ड्रॉबैक भी थे। ड्रॉबैक कैसे? अब आपने मान लो पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर दिया, पूरा फेसबुक खड़ा कर दिया, राइट। अब कोई बग आपने एज अ टेस्टर उसको दिया, अब उसको पूरे कोड में चेंज करना पड़ेगा और आपको पूरा टेस्ट करना पड़ेगा, इसमें कितना टाइम वेस्ट होगा, उसकी वजह से क्या क्या हिल सकता है कोड में, समझ रहे हो आप? तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये मॉडल को अडेप्ट करना, राइट। ये सारे आपके स्टेप है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, कोडिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ठीक है। जैसे एक बहुत एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, आपको एक यूज़र की फंक्शनैलिटी बनानी, इसमें लॉगिन हो, बुक सर्च हो, ऑर्डर प्लेसमेंट हो, पेमेंट प्रोसेस हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे, सिस्टम डिज़ाइन आप उसका करोगे। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं पीडीएफ और ये प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है अजाइल मॉडल, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट और आपको समझ में भी आना चाहिए, राइट। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एजाइल मॉडल इज एन इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच। क्या है ये? इटरेटिव है, आप इटरेट करते हो लगातार, और इंक्रीमेंटल अप्रोच भी, आज बढ़ते भी चले जाते हो। ये इम्फेसिस करता है किस पे? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, कस्टमर फीडबैक लेता है, रैपिड डिलीवरी होती है, डेवलपमेंट बेसिकली कैरियर उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट्स, राइट, कॉल स्प्रिंट, यूजली लास्ट टू 4 वीक्स। मैं आपको बहुत ईजी भाषा में समझाता हूँ। एक तो पूरा सॉफ्टवेयर जो होता है ना, उसमें एक बहुत बड़े एपिक होते हैं अलग अलग, ठीक है। उसमें से मैंने सपोज दैट इस बार जाना है सर्च फंक्शनैलिटी, ठीक है। इस स्प्रिंट में, स्प्रिंट मतलब आपको 15 दिन दिए जाएंगे डेवलपर टेस्टर को, कि भाई आप एक हफ्ते में डेवलपमेंट करोगे, आप 3 दिन में टेस्टिंग करोगे, और फिर हम इसको देंगे। तो आपने एक डिफाइंड टाइम पे, तो उसको हम स्प्रिंट बोलते हैं। उस स्प्रिंट के अंदर सपोज 2 टास्क जाने हैं, राइट। वो स्टोरीज होंगी आपकी उसके अंदर। अब क्या होता है एजाइल के अंदर, आप कंटिन्यूस डेवलपमेंट करी, आप कंटिन्यूस टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। कोई बग आया, डायरेक्ट डेवलपर को दोगे, वो स्प्रिंट को फिक्स कर दे। इस दौरान कस्टमर भी एक बीटा इन्वायरमेंट हो तो वहाँ पे टेस्ट करता है। अगर उसको सपोजेट कुछ चीज़ ऐसी लगी जो सही नहीं है, पहले वो सोच रहा था ऐसा होना चाहिए था पर अभी सही नहीं लग रहा, तो तुरंत के तुरंत कस्टमर फीडबैक देगा, टेस्टर उसको अप्रोच करेगा, डेवलपर को तुरंत चेंज कर देंगे। इससे क्या होगा? एक हमारी डिलीवरी फास्ट हो रही है, एक टाइम फ्रेम के अंदर हो रही है, साथ के साथ डेवलपमेंट हो रही है, कस्टमर भी हैप्पी रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कॉस्ट बचा रहा है, आपका टाइम बचा रहा है, आपका कोड सेफ है, रिस्क मैनेजमेंट कम हो रहा है, एंड मूवमेंट पे चेंजेस नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है एजाइल मेथोडोलॉजी, राइट। इसमें भी सेम चीज़, जैसे आप अगर डायग्राम से समझना चाहें
सो ये देखें एजाइल का कोई डायग्राम, हाँ ये रहा। ये देखें, आप पहले सेम इसमें रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, फिर डिज़ाइन करते हो, फिर आप कोड करते हो, फिर टेस्टिंग, फिर यहीं की डिप्लॉयमेंट कराते थे, यहीं की यही फीडबैक आ जाता कस्टमर का, कुछ चीज़ होती है तो दोबारा हम उसको सेम ही घूमता रहता है लूप। सो ये एक एजाइल है, इसको आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इसके अंदर, है ना। और इनके भी जैसे भी डिफाइन स्कोप करेंगे हम, फिर इंसेप्शन करेंगे, इंक्रीमेंटल रिलीज, ये सारे फेजेस होते हैं इसके, ठीक। सो मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया। एक है वी मॉडल, इसको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल बोलते हैं, और ये एक्सटेंशन है वाटरफॉल मॉडल का। बट इसमें टेस्टिंग के साथ एक पेड होता है, आप इजी से इसको ये समझ लें। एक डायग्राम से मैं इसको समझाता हूँ, मैं इसका डेफिनेशन से तो बहुत आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये यूज़ भी नहीं होता। इसमें जैसे क्या होता है, ऐसे वी बनाते हैं, ऐसे आते हैं और ऐसे जाते हैं। इसमें होता है पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर सिस्टम डिज़ाइन, फिर आर्किटेक्चर, मॉडल डिज़ाइन, कोडिंग। अब कोडिंग से ऊपर इंक्रीमेंटल अप्रोच हो जाती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर एक्सेप्शन, फिर डिप्लॉयमेंट। सो देख रहे हैं आप, ये वी बनाना। सो ये एक टेक्निक है वी मॉडल, जो मोस्टली अब हार्डली यूज़ होती है। सो इसमें भी ये बहुत सारे स्टेप है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, यूनिट टेस्टिंग। सो ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो आप सब पूछिए। एक इटरेटिव मॉडल भी है, ये आप नेट पे पढ़ें, मैं चाहता हूँ आप कमेंट आउट करें इसको लेके। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है एजाइल, जो आपको मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा पढ़े, देखिए, कुछ डाउट हो मुझे बताएं। And again, do subscribe my channel and stay in this manual series. After that, we will try to cover API and database as well, all the Jira things that as required. So thank you so much guys watching for this video, code chai testing, and stay happy. Thank you so much.